So we'll start with the today's session now. यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया है distance s nth. I'm not talking about sn. I'm talking about s nth. S nth is the distance traveled in the nth second. For example, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि there is a particle जो कि A से B तक जाता है 9 सेकेंड्स में और A से C तक जाता है 10 सेकेंड्स में. I repeat here. यहाँ पे मैं ये बोल रहा हूँ कि there is a particle which is traveling from A to B in 9 seconds. यहाँ से यहाँ तक वो 9 सेकेंड्स में जा रहा है और यहाँ से B से C तक वो 10 मतलब टोटल टाइम यहाँ से नीचे तक आने के लिए उसको 10 सेकेंड्स का लग रहा है, ठीक है. और यहाँ से यहाँ तक आने के लिए उससे टाइम लग रहा है 9 सेकेंड्स का और इधर 10 सेकेंड्स. सो कैन आई से कि 9 सेकेंड यहाँ पर पूरे हो गए, राइट, और 10 सेकेंड यहाँ पर पूरे हो गए. सो इज दिस द डिस्टेंस ट्रेवल इन द 10th सेकेंड? सिंपल इंग्लिश. डिड यू गेट? आई रिपीट, इधर तक आने के लिए 9 सेकेंड शुरुआत से. दिस इज t इज इक्वल टू 0, दिस इज t इज इक्वल टू 9 एंड दिस इज t इज इक्वल टू 10. तो ये टोटल डिस्टेंस है 10 सेकेंड में कैरी कवर किया हुआ. दिस इज 9 सेकेंड. सो इज दिस द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द 10th सेकेंड? 10th 10वें सेकेंड में, 10वें सेकेंड में. आर यू गेटिंग दैट? ठीक है. दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द 10th सेकेंड. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर. यहाँ पर जैसे कि हम देख पा रहे हैं, दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द 10th सेकेंड. वी कॉल दिस एज, अगर मैं उसको ऐसे ही आगे मैं देखता हूँ तो वो हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द 11th सेकेंड. इसके आगे चलूंगा तो हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द 12th सेकेंड. आई होप यू अंडरस्टैंड. सो लाइकवाइज आई कैन फाइंड आउट व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड in the nth second. Nth, okay, this is s nth and we have written down this expression, we have derived this expression. ये उसका derivation यहाँ पर दिया हुआ है. Derivation is not important. We have to remember here is the formula. S nth is u, initial velocity, plus half a times 2n minus 1. Is that clear? Okay. अब हमें इसको solve करना है. We are supposed to solve this. Now let us read the question. The question says that the distances covered by a freely falling body in its first, second and third nth second, they are in arithmetic progression, geometric progression, do not form well defined series, forms a series वगैरह वगैरह वगैरह. I hope you already know what is the arithmetic progression. बचपन में था ना तुमको ये arithmetic, geometric, 10वीं कक्षा में रहा होगा, right? और let us take this, let's work it out for this. इसके लिए हम शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस. तो they say the distances traveled by the freely falling body. What do you mean by freely falling body? Can anybody tell me, elaborate about this freely falling body? What will be freely falling body? Very correct. Okay, freely falling. Okay, let me just give you an insight to this. Take an object. Let's say I consider an object. Let's say this is an object which I take. ये object मैंने यहाँ से छोड़ दिया और यहाँ से throw किया. Is there a difference there? Yes. Is there a difference in that? What is the difference there? Free fall, thrown fall. यहाँ पर भी acceleration due to gravity ही है, यहाँ पर भी acceleration due to gravity ही है. But what is the difference? When this is absolutely correct, there you are. Initial velocity is 0. Is that okay? This is called as initial. We say here the initial velocity is equal to 0. One has to know this. This is u is equal to 0. This is the hidden data. You have to make it out from this word, freely falling body. ठीक है? And of course, in all these cases, acceleration due to gravity is there. I'll call a is equal to g, rather a is equal to minus g, because downward direction will have some sign conventions. ऊपर positive, नीचे negative, right positive, left negative, just like our graph. Okay, fine. So let us check this out now. Check करते हैं इसको.
तो इसके लिए हम यहाँ पर बात करते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द फर्स्ट सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द सेकेंड सेकेंड. So I'll say S first, S second, S third, dot dot dot, S nth. In all these cases I have to use this formula, and everywhere this u is equal to 0. So if I write down the expression for S first, u is equal to 0, इसे प्लस हाफ a के जगह पर आएगा माइनस हाफ g. सही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, वो माइनस g हो जाएगा. इट विल बी 2 इंटू, व्हेन आई से s फर्स्ट, s nth, s फर्स्ट मतलब यहाँ पर मुझे n इज इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करना है, यहाँ पर n इज इक्वल टू 2 होगा, यहाँ पर n इज इक्वल टू 3 होगा, एंड डॉट 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 n इज इक्वल टू n होगा. आई होप यू अंडरस्टैंड दैट. समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है प्रसाद? ओके. So this is 2 into n minus 1. Can you please help me to substitute? ये क्या बन जाएगा? ये तो गया, isn't it? So this is 2 minus 1, है ना? This is 1 ना? तो ये आएगा 2 minus 1 is 1. So this is half g by 2. चलिए यहाँ पर क्या आएगा बताइए? s second. Help me please. Minus half g. Help me please. 2 into n के जगह पर आएगा 2, 2 2 जा 4 minus 1. So what is this going to give you? Minus 3g by 2. You see? S third. So this is again 0 minus half g into 2 into 3 minus 1. 3 2 जा 6. So this is going to be minus 5g by 2. I hope you understand that. Likewise we'll proceed. Let us try to find out कि इसमें क्या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है. भाई ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है जी? द रेशियो इज कांस्टेंट. ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन t2 अपॉन t1 इज इक्वल टू t3 अपॉन t2, और ये ऐसे चलता रहेगा, राइट ना? दिस इज जीपी. सो आई जस्ट ट्राई टू फाइंड, ये आप जीपी है या एपी है या कुछ और है? कैन यू प्लीज टेल मी? If I'll try to find out this is the second term, first term, third term, अगर मैं T2 के जगह पर मैं यहाँ पर S n S second ऐसे मैं ले लूँ तो क्या बन जाएगा ये बताइए? What is this going to give me? बोलिए. अगर मैं second term first term का रेशियो ले लूँ S second upon S first, तो this is going to be minus 3g upon 2 divided by minus g upon 2. This comes out to be 3. राइट ना, है ना? डू आई रियली नीड टू डू दिस? व्हाट इज द डिफरेंस? एपी के लिए क्या होता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए द डिफरेंस ऑफ द टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? सो इफ आई टेक द डिफरेंस ऑफ दिस s second minus s first, what is this ratio? Minus 3g upon 2 minus minus plus, it is g upon 2, and this ratio is डेढ़ में से आधा गया, एक बचा, so it will be simply g. Yes or no? Minus g rather. समझ में आ रहा है? And if I take the difference of s third minus s second, that is minus 5g upon 2 minus of minus, that is plus 3g upon 2, तो ये भी minus g ही आएगा. I hope you understand that. Hello? समझ में आ रहा है? So is this an arithmetic progression? Yes. So what is the answer here? It forms an AP. It forms an AP. Is that clear? It forms an arithmetic progression, and the answer would be A. Arithmetic progression. Is this clear to you all? This was not an easy problem, let me tell you. अच्छा problem था ये, और let me call this as, there are 3 types of problems. एक जनरल प्रॉब्लम जिसको मैं स्टार वार मार्क नहीं करूंगा, एक गुड लेवल ऑफ डिफिकल्टी, वेरी डिफिकल्ट लेवल, गुड लेवल ऑफ डिफिकल्ट स्टार प्रॉब्लम, large, I mean more level of difficulty double star, and little below the level of difficulty but better than average, so I'll call this as a half star problem. Is this okay? Any doubts about this? समझ में आया सबको ये? ठीक है.
Well, let me take you to the next problem here. अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं हम. ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये. दैट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन बाय द वे. I'll go for the next question now. Question number 56 in the same series. Yeah, please read the question. जनरली आप लोगों को एक थोड़ा टाइम है हमेशा देता हूँ या दिया करूंगा टू रीड द क्वेश्चन. पढ़ लिया? इजी क्वेश्चन है, डैम इजी. यप, अ बॉडी कवर्स, अ बॉडी, आप लोगों को दिखाई तो दे रहा है ना ठीक से? अ बॉडी कवर्स 20 meter, 22 meter, 24 meter in 8th, 9th and 10 seconds respectively. So I would say here the data given is S 8th, S 9th and S 10th is 20, 22 and 24 meters. बराबर है ना? Respectively, the body starts from rest, moves with uniform velocity, from rest with moves with uniform acceleration, with an initial velocity, moves with whatever. So कैसे करेंगे? Clearly, from the data given, it is quite clear that it is a question based on SNF. Can you tell me what is the formula for SNF? The formula for SNF is U plus half A to n minus 1. In each cases here they have given me what is n is equal to, it is 8 second, here 9 second, and here it is 10 second. So clearly I'll have here three equations. I'll have here three equations. उन तीनों इक्वेशन से मैं शायद इनिशियल वेलोसिटी, जो कि मुझे पता नहीं है, और एक्सेलरेशन इसका पता कर सकूंगा. इनिशियल वेलोसिटी विच आई डोंट नो एंड एक्सेलरेशन विच आई डोंट नो. आई कैन फाइंड आउट दीस थिंग्स फ्रॉम दिस. यस और नो? टू इक्वेशन से ही मुझे पता चल जाएगा. बाय द वे, आई विल गेट टू नो अबाउट दिस फ्रॉम द टू इक्वेशंस ओनली. सो लेट मी जस्ट सब्स्टिट्यूट हियर. अगर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं तो क्या मिल जाएगा? इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. 20 is equal to u plus half a. 2 8s are 16 minus 1 15. Can I directly say so? थोड़ा सा डायरेक्ट जा रहा हूं मैं अब. चलेगा ना? Here 22 is equal to u plus half a 2n 2 18 2 9 18 minus 1 17. I hope this is clear to you all. Are you all understanding that? Am I going too fast? ज़्यादा फास्ट हो रहा है? ठीक है, चलिए. All of you are comfortable with Hindi and English, I suppose. हिंदी इंग्लिश कंफर्टेबल है? चारों भी बोलो हाँ या ना. मुझे मराठी पाहिजे कोण तुमच्या? हाँ, ओके. यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशंस मिल चुके हैं. we have got two equations and I suppose दो इक्वेशन से हम दो अननोन्स को फाइंड आउट कर ही सकते हैं. सो आई विल सॉल्व दीज टू साइमल्टेनियसली. ये दोनों के दोनों इक्वेशंस में साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा. कैसे करेंगे भाई? सब्ट्रैक्ट कीजिएगा. यहाँ पे आई विल राइट दिस इक्वेशन हियर अगेन. सो दिस इज 20 प्लस इज इक्वल टू u प्लस हाफ a into 15. well let me subtract these equations. दोनों इक्वेशंस को हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं यहाँ से. सब्ट्रैक्ट मीन्स यहाँ पर माइनस होगा, इधर माइनस होगा, इधर माइनस होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा. व्हाट यू गेट देयर इज 2 इज इक्वल टू, कैन आई टेक दिस हाफ ए कॉमन? जी, हाफ ए कॉमन लेने के बाद जो बचेगा 17 माइनस 15 इज 2 एंड 2 कैंसिल. सो व्हाट यू गेट देयर? we got a is equal to 2 meter per second square. This is a constant.
वेल इस a को मैं किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लूँ, वेल सब्स्टिट्यूट दिस a इन एनी ऑफ दिस इक्वेशंस, आई गेट, तो क्या मिल जाएगा, u मिल जाएगा मुझे, दिस विल बिकम 20 इज इक्वल टू u प्लस हाफ ऑफ a, हाफ इंटू 2 इज 1 इंटू 15, तो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा u इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। इज दिस क्लियर, समझ में आ गया? तो दिस इज इनिशियल वेलोसिटी एंड दिस इज द एक्सेलरेशन। नाउ आफ्टर नोइंग दिस थिंग्स, ये करेक्ट है कि नहीं मुझे यहाँ से पता चल जाएगा। आई यूज दिस फॉर चेकिंग, या तो इसको नहीं यूज कर लिया तो भी चलेगा। चलिए, तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, लेट्स टॉक अबाउट द ऑप्शंस गिवन। द ऑप्शंस दे से इज द बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, अगर वो फ्रॉम रेस्ट शुरू होता तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होता ना, तो ये झूठ बोल रहा है, ये बहुत झूठ बोल रहा है, सही है ना? अब सी की बात करें, इट स्टार्ट्स विद एन इनिशियल वेलोसिटी एंड मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एंड दैट्स द आंसर। इज दिस ओके? एनी डाउट्स? दिस इज वेरी क्लियर। I hope this is clear to you all. Yes. Okay, let's go for the next question. अगला क्वेश्चन की बात करते हैं जी। The next question. A car moving along the straight road with a speed of this and brought to stop within a distance of this, how long does it take to stop the car? I would like to give this as a homework. डिस्कस कर लेता हूं बस मैं, एनालाइज आप करो, सॉल्व आप करो, डिस्कस करते हैं। अ कार मूविंग अलोंग द स्ट्रेट रोड विथ स्पीड ऑफ, इसका स्पीड दिया है यहाँ पे, या ऐसे इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया है जी, 144 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब लास्ट लेक्चर में मैंने एक चीज बताई थी, उमर को याद होगी शायद। yes, sir. So if we want to convert it into meter per second, then we need to multiply it by 5/18. Absolutely correct। मैं ये बोल रहे हैं कि इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे अगर, तो ये जो है वो मीटर पर सेकंड में हो जाएगा, विच इज आवर एसआई यूनिट। क्या है ये 5/18 का गेम, देखते हैं यहाँ पे। आई जस्ट क्विकली गिव यू द आइडिया। देखिए ये 144 तो है ही, लेकिन 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं जी, 1000, करेक्ट है जी। और 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, बराबर है ना? 60 मिनट्स, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, और फिर इस 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड नहीं होते, होते हैं क्या कि नहीं होते प्रसाद? ठीक है, तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूं, मतलब ये 0 गया, ये 0 गया इसके साथ, एंड 2 5 2 3 एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, तो आई गेट दिस, यस और नो? ठीक है ना? अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये 5/18 आता है फैक्टर, तो आप ये डायरेक्टली भी याद कर सकते हो। एनीवेज, सो लेट मी डू दैट। तो आप ये करोगे, उसको इनिशियल वेलोसिटी मिल गया, देन इट्स ब्रॉट टू स्टॉप, द कार इज ब्रॉट टू स्टॉप, बोले तो फाइनल वेलोसिटी इज 0 विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, एस इज इक्वल टू 200 मीटर। तो भाई यहाँ पे कार चल रहा है, दिस इज माई होंडा सिटी going with initial velocity, and after certain distance it stops over there, you see, यहाँ पे जाके वो रुक जा रहे हैं, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, इट इज डूइंग दिस इन द डिस्टेंस ऑफ, और मुझे उन्होंने पूछा है कि भाई इसमें तुम्हारा टाइम कितना लगेगा जी, तो आप लोग इसको ट्राई कर लीजिएगा। आई वुड लाइक टू गिव दिस एज अ होमवर्क, वुड यू लाइक टू ट्राई? इस टाइप का एक प्रॉब्लम मैंने प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व किया है, यहाँ पर मैंने इसको आधे तक। देखिए, इसके लिए हमारे पास जो 3 इक्वेशंस है, वो तीनों इक्वेशंस ही यूज करने पड़ेंगे। s इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, इसमें फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है, तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन।
एंड देन v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। यहाँ पर एक्सेलरेशन पता चल चुका है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, कैन फाइंड आउट द टाइम एंड दैट्स द आंसर। इज दिस ओके? स्टेप 1, स्टेप 2 ओके, समझते हैं? सेकेंड ये दिया है, इनिशियल स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड, फाइनल स्पीड 50 मीटर पर। शैल आई राइट डाउन द डेटा गिवन? Whenever we read the question, we have to write down the data given. U is equal to 30 मीटर पर सेकेंड। आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है आप मुझे बताते जाइए, मैं लिखता जाऊंगा। V is equal to 50 मीटर पर सेकेंड। आगे बताइए। इन अ डिस्टेंस ऑफ 180 मीटर, यस, S is equal to 180 मीटर। समझ में आ रहा है? If the acceleration is constant, acceleration is constant, okay, how much time elapses while the auto moves this distance? मतलब t पूछा है। बताइए जी, बहुत सिंपल है। Shall I explain? There are three kinematical equations। भाई इनको कनेक्ट करने वाला कौन सा इक्वेशन आप यूज कर सकते हैं? ये देखिए, इनको कनेक्ट करने वाला एक इक्वेशन तो है भाई मेरे पास। देयर इज वन इक्वेशन विच इज कनेक्टिंग देम। इन लोगों को कनेक्ट करने वाला एक इक्वेशन है। कौन सा इक्वेशन? देयर इक्वेशन इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। सही है? 50 स्क्वायर 900 2a 180। you see this is 2500 minus 900, कितना आएगा जी? 1600। वेरी गुड, 1600 इज इक्वल टू 2a 18 180। तो ये 0 गया, 2 8 जा, बराबर है क्या? तो द एक्सेलरेशन इज 80 अपॉन 18। 80 अपॉन 18 बोले तो 40 अपॉन 9, बराबर है क्या? 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट दे आर नॉट आस्किंग अस एक्सेलरेशन। एनी डाउट सो फार? दिस इज ओके। अब देखिए मेरे पास एक्सेलरेशन मिल गया है, तो भाई इनको कनेक्ट करने वाला एक इक्वेशन है वहां पे। There is an equation which connects these all. V is equal to u plus at। Is this okay? V is equal to u plus at। Let me just substitute there. Final velocity 50, initial velocity 30, acceleration 40 upon 9 into t. So this is 20 is equal to 40 upon 9 into t. 20 2s are, and t is equal to 4.5 seconds. I hope this is very clear. ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसलिए हम इसे सब क्वेश्चंस, दिस इज लाइक अ फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन एंड आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन। एनी डाउट्स अबाउट दैट? समझ में आ गया? सो द आंसर इज बी। इज दिस ओके? ओके, एनी डाउट्स सो फार? चलिए मैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे पोस्ट कर रहा हूँ, तो मुझे आप लोग बताइए अगला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। ठीक है, ये रहा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। ओके, चलिए पढ़िए। चलिए बताइए, हाउ डू आई गो फॉर दिस? अ बॉडी फॉलिंग, हाँ जी बोलिए। अच्छा ठीक है, मैं शुरू करता हूँ। आप लोग, मैं जहाँ पे अटक जाता हूँ, ये हेल्प मी आउट। अ बॉडी फॉलिंग फ्रीली। बाबा फॉलिंग फ्रीली का क्या मतलब होता है जी? एंड और भी कुछ होता है उसमें? फ्री मतलब फ्रीली अंडर ग्रेविटी जे। सो इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज माइनस जी। समझे कि नहीं समझे? passes 2 points 30 meter apart in 1 second. Oh my god, मतलब ऐसा है कि बॉडी समझो कि भाई वो यहां से गिरना शुरू हो गया, वैसे यहां से शुरू हो गया गिरना और इधर आ गया। टाइम कितना हुआ पता नहीं है,
ठीक है, अब देखिए ऐसा आगे जा रही है वो. It started from point A. It was at t is equal to 0. करेक्ट. भाई वो यहां पर आ गया पॉइंट बी पर, t इज इक्वल टू पता नहीं, t इज इक्वल टू पता नहीं. पता नहीं को मैं क्या बोल दूं, x बोल दूं. लेकिन इधर आता है वो, और ये डिस्टेंस है 130 मीटर, एंड दिस टाइम इज t इज इक्वल टू पता नहीं प्लस 1. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग देन? करेक्ट. ऐसा दिया हुआ है कि भाई वो किसी एक सेकंड के अंदर, सो टाइम व्हाट इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स? 1 सेकेंड. सही है ना? और इस एक सेकेंड में वो 30 मीटर कवर कर रहा है, ऐसा क्वेश्चन बोलता है. इट पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स 30 मीटर अपार्ट इन 1 सेकेंड. टू पॉइंट्स विच आर 30 मीटर अपार्ट इन 1 सेकेंड. समझे? समझे? फ्रॉम व्हाट पॉइंट अबव द अपर पॉइंट इट बिगैन टू फॉल. बाबा अपने को पूछा है कि इसके ऊपर, फ्रॉम व्हाट पॉइंट अबव द अपर पॉइंट, अपर पॉइंट के ऊपर कितना दूर उसने गिरना शुरू किया. दिस इज स्टार. यस, आई वांट टू फाइंड आउट ए बी, एंड नो डाउट दिस इज स्टार प्रॉब्लम. क्योंकि कई बार अपने को प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आ रही है. मेनी टाइम्स वी डोंट अंडरस्टैंड व्हाट द प्रॉब्लम इज. और जब क्वेश्चन आपको समझ में ना आए तो उसका चित्र बनाए. ड्रॉ द स्केच. If we draw the sketch, then we understand the problem to little better extent. चलिए अब कैसे शुरू करें. So clearly मैं यहां पर ये बोल सकता हूं कि AB is the distance covered in x seconds, and AC is the distance covered in x plus 1 second. So BC is the distance covered in x plus 1th सेकेंड. समझ में आ रहा है? यहां पर x सेकेंड्स पूरे हो गए. फॉर एग्जाम्पल मैं बोल सकता हूं कि भाई यहां पर 12 सेकेंड्स पूरे हो गए और यहां पर 13 सेकेंड पूरे हो गए, तो ये है 13th सेकेंड. 13th सेकेंड बराबर है ना. दिस इज S13th. BC is the S13th, ऐसा बोल सकते हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. एनी डाउट सो फार? समझ में आ रहा है सबको ये? तो बताइए आगे कैसे करना है. कम ऑन, हाउ डू आई प्रोसीड फर्दर? यस प्लीज. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो अब मुझे यहाँ पे दो इक्वेशंस लिखने पड़ेंगे. आई हैव टू राइट डाउन हियर 2 इक्वेशंस. मुझे ए बी ही चाहिए ना. सो मैं एस एक्स प्लस 1, आई यूज द फॉर्मूला एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ये वाला पहले फॉर्मूला मैं यूज कर लेता हूँ. तो एस एक्स प्लस 1 is equal to initial velocity is 0, time taken is x plus 1 seconds, प्लस के जगह पर मुझे माइनस हाफ g इंटू टी. टी इज वॉट? x प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर. ये होगा. इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? चलिए, और मैं यही एस एक्स के लिए भी अगर लिखूँ तो इट विल बी u 0 इंटू एक्स माइनस हाफ g एक्स स्क्वायर. ये मैंने लिख दिया. एनी डाउट सो फार जी? इज दिस ओके? इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट अगर कर लूँ, इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर लूँ तो वही मेरा आंसर होगा. सॉरी, वही BC होगा ना. सो दिस इज एस एक्स प्लस 1 माइनस एस एक्स इज इक्वल टू, ये तो गया, बहुत जोर से गया बिकॉज इट इज. ठीक है. अब जब मैं इसको माइनस कर रहा हूँ, ये भी माइनस, इसको भी माइनस करो तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. समझ में आ रहा है? ठीक है. सो कैन आई टेक दिस माइनस हाफ जी कॉमन? तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा जी? एक्स प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर
माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस और माइनस मिला के प्लस हो रहा है, बट दिस इज नथिंग बट बी सी, यू सी दिस इज बी सी, करेक्ट है। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं, फिर क्या बनेगा ये, दिस विल गिव मी, let me just write down, this is minus half into g, can we open this bracket, इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, x square plus 2x plus 1 minus x square, समझ में आ रहा है, this gets cancelled, this BC is given to be 30 meter, this BC is given to be 30 meter, hello, BC is given to be 30 meter is equal to minus half into g, बराबर है, this is 2x plus 1, 2x plus 1, तो एंड ये एक्चुअली -30 मीटर हो जाएगा, बिकॉज ये डिस्प्लेसमेंट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो आई हैव टू टेक दिस एज -30, समझ में आ रहा है, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसको मैं अगर सब्स्टिट्यूट करूंगा तो 30 इंटू 2 60 इज इक्वल टू, जी के लिए मैं 9.8 नहीं, जी के लिए मैं 10 सब्स्टिट्यूट करूंगा, इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10, सो दैट मेरे कैलकुलेशंस आसान हो जाएंगे, दिस गेट्स कैंसिल, राइट, so 6 minus 1 is 5 and 5 by 2 is equal to x, so what is x is equal to 2.5 seconds, x is equal to 2.5 seconds, बराबर है क्या, 2.5 सेकेंड है। अब इस x को मैं अगर सब्स्टिट्यूट कर लूं तो आई थिंक आई विल गेट हियर डिस्टेंस ए बी, यहां पर सब्स्टिट्यूट कर लूंगा, समझे, सो लेट मी जस्ट सब्स्टिट्यूट हियर इन एक्स, एस एक्स, एस एक्स में अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर लूं तो एस एक्स विच इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बराबर है क्या, और यहाँ पर टाइम इज इक्वल टू एक्स है ना, टी इज इक्वल टू एक्स एंड दैट इज इक्वल टू 2.5 सेकेंड्स, समझ में आ रहा है, लेट मी सब्स्टिट्यूट हियर, इनिशियल वेलोसिटी इज 0, दिस इज 2.5 एंड इट्स माइनस हाफ, g is 10 ले लूंगा मैं, एंड दिस इज 2.5 का स्क्वायर, दिस इज गॉन, डिस्प्लेसमेंट नीचे की डायरेक्शन में इसलिए माइनस आ रहा है, वो इट्स अ डाउनवर्ड वेक्टर, दिस इज 2 5 एंड 2.5 का स्क्वायर 6.25, तो कुल मिलाकर के आएगा, देखिए 25 अजून 10 2 12 1 30 आणि 31 31.25 मीटर, सो द आंसर इज नियर बाय 31.25 मीटर। अब आंसर के ऑप्शंस को अगर देखते हैं तो विच इज द नियरेस्ट आंसर, 31.25 का ए इज द करेक्ट आंसर, द नियरेस्ट बीइंग, इज दिस ओके, एंड इट्स अ स्टार प्रॉब्लम, इट्स अ स्टार प्रॉब्लम है ना, इट वाज अ गुड प्रॉब्लम, डू यू थिंक सो, बहुत अच्छा प्रॉब्लम था, ठीक है, तो लेट मी जस्ट मार्क दिस प्रॉब्लम, एनी डाउट्स अबाउट दिस, समझ में आ रहा है, हाँ बोलना।